Yes. Okay, students. So today we are going to start with the next part from your chemical kinetic chapter, that is zero order reaction, right? And then we'll study integrated rate law for the zero order reaction. So we'll start with the next point, which is nothing but zero order reaction. Right? First, we'll understand the meaning of zero order reaction. Abhi zero order reaction hota kya hai? Right? Question may be like that. Write a note on zero order reaction. Define zero order reaction. Yeah, what is zero order reaction? Explain. Explain with example bhi ho sakta hai, right? So, in case of zero order reaction, a reaction in which the rate of the reaction does not depend on the concentration of any reactant taking part in the reaction. Right? We'll take an example. अगर एक example ले लेते हैं हम लोग. Consider the reaction. एक reaction consider कर लेते हैं H2 gaseous plus Cl2 gas. Okay. तो यहाँ पे H2. This is nothing but a photochemical reaction between H2 and Cl2 gases. Right? In presence of diffuse sunlight. मैं यहाँ पे TS लिख रहा हूँ, मतलब ये diffuse sunlight रहेगा. So it will give 2 HCl. So this is a photochemical reaction. Now in this particular reaction, the rate of the reaction remains constant throughout the progress of the reaction. मतलब इसमें क्या होता है कि rate of the reaction जो है that remains the constant. ठीक है? Even if the concentration of the reactant decreases with time, that particular rate of the reaction that will remain constant. Now by using rate law, applying rate law, अगर आप rate law apply करते हो, तो by using rate law, rate is equal to what? That is equal to K into concentration of H2, right? ये हो गया concentration of H2 power 0 रहेगा and concentration of Cl2 raised to power 0. यहाँ पे देखिए. So तो अगर आप देखोगे तो अगर आपने ऑर्डर अगर निकाल दिया इस केस में तो वो जीरो ऑर्डर मिलेगा, right? So we can say that is R is equal to K, which is nothing but the constant. So in this particular reaction, photochemical reaction, the rate of the reaction, it will remain constant throughout the reaction, right? So here we can say that in simple word that the rate of zero order reaction is independent of the reactant concentration, right? So आप अलग दो different way से इसको define कर सकते हो या explain कर सकते हो. एक मैंने क्या बताया? The rate of zero order reaction is independent of the reactant concentration. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. According to that, the rate of zero order reaction is independent of the reactant concentration. Easy. तो ये हो गया आपका zero order reaction. Or we can explain in a different way also. A reaction in which the rate of the reaction does not depend on the concentration of the reactant taking part in the reaction, that is also called as the zero order reaction. अब अपने ways में इसको define कर सकते हो. Simple है. तो ये हो गया आपका zero order reaction, right? Now second point जो है इसके अंदर है, that is integrated rate law for zero order reaction. क्वेश्चन कैसे रहेगा? देखो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक, राइट? तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन और डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द. क्वेश्चन कैसे रहेगा? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ठीक है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिराइव किया था, वैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको क्या करना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ
निकालना है। तो ये अगर आपका एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जहाँ पे A get converted into product, so this is the reaction where A is the reactant, it will get converted into product. So this particular reaction is actually zero order reaction which is given in the question itself. तो आपको क्वेश्चन प्रॉपरली देखना है whether the we have to derive the integrated rate law for either zero order reaction or first order reaction. ठीक है ना, वो बराबर से आपको देखना है, क्वेश्चन पढ़ना भी है बराबर से. So now we are going to derive the integrated rate law for the zero order reaction. ठीक है, so we'll start for the given zero order reaction. तो इसका solution देखो कैसे रहेगा. What is the answer for this particular derivation? Now for zero order reaction, अपना जो zero order reaction है, क्या है zero order reaction? The reaction is given that A get converted into P. यहाँ पे P जो रहेगा वो प्रोडक्ट है, सिंपल, आप प्रोडक्ट लिख दीजिए, आप P लिख दीजिए. Now we'll apply the rate laws. ठीक है, so मुझे बताइए, by using the rate of the reaction, how will you write the rate? Rate is equal to what? रिएक्टर यहाँ पे A कंसिडर किया है तो क्या बनेगा? माइनस डी बाय dt of concentration of A. ठीक है, this is the rate by using what? Rate of the reaction. So by concept of rate of reaction, we'll write rate for this zero order reaction is rate is equal to rate of the reaction is equal to minus d by dt of concentration of A. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट. Then again we can write the rate. Second option क्या है? Rate is equal to K into concentration of A raised to power 0. Now ये आपने कैसे रेट डिफाइन किया या एक्सप्लेन किया हुआ है? दैट इज बाय रेट लॉ. ठीक है, तो आपने रेट ऑफ द रिएक्शन से रेट लिखा हुआ है और बाय रेट लॉ से रेट लिखा हुआ है फॉर द गिवन रिएक्शन. अगर आप देखो हम लोग इसको नंबरिंग कर देते जाते, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. नाउ हियर व्हाट हैपन, लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल है, रेट रेट, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. करेक्ट है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सो अपना राइट हैंड साइड क्या है, लेट इट बी माइनस डी बाय dt concentration of A is equal to K into molar concentration of A raised to power 0. ठीक है, तो ये आपने, अच्छा यहाँ पे एक कंसिडर कर सकते हो, अभी ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to power 0 को आप 1 लिख सकते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट करो या फिर आप यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस. तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, d बाय dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K, बिकॉज यहाँ पे आपने, इसका रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 1, सो एनी वैल्यू रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो आपको क्या मिल गया, d माइनस डी बाय dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K मिल गया, राइट. अभी हम लोग सिर्फ इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे. तो अभी हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं. देयरफॉर ये बनेगा आपका d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और ये dt को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं. ठीक है, और ये साइन भी आपका राइट हैंड साइड में जाएगा और dt यहाँ पे राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा आपका माइनस k इंटू dt. तो d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt. ये आपको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, राइट. नाउ वी विल इंटीग्रेट. सो इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट. अभी लिमिट क्या होता है, देखो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन एट द गिवन टाइम आप लिखते हो, राइट. सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, दैट विल बी एट टाइम t इज इक्वल टू 0. What is the concentration of A at time t is equal to 0? That is A naught. हमने पहले भी कंसिडर किया था, राइट. तो there will be first we'll integrate this particular equation. So integrating above equation between the limits. So limits कैसे रहेगा आपका, ओके. देखो concentration of A is equal to concentration of A naught at time t is equal to 0. So जब ये आपका इनिशियल टाइम था, एट इनिशियल टाइम,
the concentration of reactant will be considered as a A0. ठीक है, at time t, मतलब अगर मेरे पास टाइम इज इक्वल टू टी है, पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, so at particular time t, what is the concentration of A? तो concentration of A क्या बनेगा? That is AT. ठीक है, so we'll substitute this equation into this particular, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मैं पेज टर्न कर रहा हूं, करेक्ट। नाउ सो मैं वो इक्वेशन में फिर से लिख देता हूं, दैट इज D into concentration of A which is equal to minus K into dt। ये आपका इक्वेशन था। अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट इनिशियल दैट इज A नॉट एंड फाइनल AT, ठीक है। और ये बन जाएगा D into concentration of A। बस अभी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं। K हमने बाहर निकाल दिया माइनस K, अभी इनिशियल कितना था 0, फाइनल क्या था T dt। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप चेक कर लेते हो तो मुझे बताइए यहाँ पे कैसे होगा। ये अभी आपका जो इनिशियल जो इंटीग्रेशन आप निकालोगे, राइट, वो फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, या आप लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या था, या सिंपल आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 80, राइट, माइनस A नॉट विच इज इक्वल टू माइनस K। अभी ये देखो T माइनस 0 हो जाएगा, T माइनस 0 क्या बनेगा, T हो गया। तो ये आपका इक्वेशन आ गया है, राइट। अभी अगर आपने साइन चेंज कर दिया इसमें, राइट, तो साइन चेंज किया तो कैसे होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर माइनस साइन यहाँ पे आ जाएंगे। तो हेंस KT इज इक्वल टू व्हाट, KT इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये हो गया आपका A नॉट माइनस AT। इजी। So this is what final equation, which is nothing but this equation is called as an integrated rate law for zero order reaction. Integrated rate law for zero order reaction. Easy. यहाँ पे हमने सिर्फ साइन चेंज किया, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो होगा माइनस AT प्लस A नॉट। तो उसको हमने लिख दिया A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT, राइट। सो दिस इज व्हाट integrated rate law for the zero order reaction. So, okay, yes बेटा। सर आपने कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट वाला 1 कैसे लिखा था प्रीवियस पेज में? एक मिनट या यस बेटा बताइए, ये वाला ना। हाँ सर, हाँ बेटा any value raised to the power 0 is equal to 1 ना। अरे सॉरी सर 10 raised to 0 is equal to 1 ना बेटा। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसेप्ट हमने यूज किया है बस। A रेस्ट मतलब A नॉट, यहाँ पे A रेस्ट टू पावर 0, ये A नॉट नहीं है, ध्यान रखना, ये पावर में है ना, ठीक है। यस A रेस्ट टू पावर 0, तो एनी वैल्यू रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाता है ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे कंसीडर किया, ध्यान रखना, राइट ना, ध्यान रखना, ये इंटू 1 हो गया। इजी। यस सर। What zero order reaction? It is very important question. N number of time asked in the examination. बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये पार्ट के ऊपर आपको श्योरली मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे, आंसर मतलब ये डेरिवेशन या डेफिनेशन या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, करेक्ट। सो फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, राइट। द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड में अगर आपको बोलना चाहिए तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं है कंसंट्रेशन, rate is not depend upon the concentration of reactant. That is what zero order reaction. क्यों, अगर आपने यहाँ पे चेक भी किया है तो उस हिसाब से R इज इक्वल टू के कांस्टेंट मिला हुआ है, राइट। डेरिवेशन जो है वो प्रॉपर्ली आपको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। देख दोनों में डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती, ये A नॉट मतलब जो है वो
फर्स्ट ऑर्डर के केस में 1 होता है, राइट, ध्यान रखना, उतना ही सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। सो एक बार देख लीजिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन A to P, as per the rate of the reaction we have written first rate is equal to minus d by dt of concentration of A, फिर by rate law we have written the rate is equal to K into concentration of A naught, आप चाहिए तो यहीं पे concentration of A naught is equal to K कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे वो दोनों को इक्वेट कर दिया है, बाद में मैंने यहाँ पे A naught को 1 डाल दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू के बन गया, बस उसको रीअरेंज कर लीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, फिर बाद में इंटीग्रेट करना है आपको विद इन द लिमिट टाइम t is equal to 0 at time t is equal to t, at time t is equal to 0 what is the concentration of reactant A that we have considered initial concentration, that is A naught, at time t is equal to t what is the concentration of the reactant A that we have considered as a concentration of A at time t, तो वो बन गया 80, बस A naught और 80 बस आपका इनिशियल या फिर इनिशियल और फाइनल को आपको लिमिट कंसीडर करना है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमने यही इक्वेशन रिटर्न कर लिया है, इंटीग्रेशन दिखा दिया है और आपका आंसर निकाल लिया है, तो ये हो गया आपका फाइनल। सो वी कैन राइट KT is equal to A naught minus 80, this is nothing but your integrated rate law for zero order reaction। तो याद रखना ये फॉर्मूलेज, मेंस में आप लोग को ना सिंपल ये फॉर्मूलेज ही ध्यान रखने, बस बाकी कुछ नहीं है। मेंस और एडवांस के लिए आप क्या करोगे, ये जितने भी फॉर्मूलेज है वही ध्यान में रखना है, बस आपको डेरिवेशन वगैरह पूछने वाले नहीं है, दे आर गोइंग टू आस्क ओनली द न्यूमेरिकल्स, राइट, तो ये जो फॉर्मूलेज है वो अच्छे से याद रखिए, बस बाकी कुछ सिंपल। नाउ वी विल कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट, तो अभी इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं हम लोग। सो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, चलो देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है KT इज इक्वल टू A naught माइनस 80, ये मेरा आपका, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नाउ सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज A naught माइनस 80 डिवाइड बाय T, राइट। अभी ये आपका जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कुछ भी रहेगा वो मोल पर लीटर पे रहेगा या मोल पर डीएम क्यूब पे रहेगा, ठीक है, ओके। तो आप ये जो यूनिट है वो आप देखो, ऊपर में जो कुछ भी रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपर में जो कुछ भी रहेगा वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किस पे कंसीडर कर लेंगे, आइदर मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर में, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, देखो डिवाइड बाय डीएम क्यूब लिखा है मैंने, या मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय टी हो गया, तो अगर इसको आप करना चाहते हो तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब को आप लिख सकते हो मोल डीएम रेज टू -3 एंड टाइम इनवर्स, बस लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, या आप इसको मोल पर लीटर मतलब मोल लीटर इनवर्स टी टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो। सो एनी डाउट, इसमें कुछ डाउट है, if no doubt then we'll go for the half life of the zero order reaction, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, नाउ विल गो विद द हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, yes, and then we'll solve some numerical based on this half life of the zero order reaction, okay। Next IMP point, that is half life of zero order reaction, similar to our first part, that is first जो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जैसे किया था उसी टाइप में करना है, सिर्फ हमें हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दी zero order integrated rate law for zero order reaction, right? So now according to the concept, right, what is the integrated rate law for zero order reaction, just हमने अभी पढ़ा था, क्या था हमारा,
integrated rate law for zero order reaction, that is KT is equal to A naught minus AT. ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ इसका अभी आपको हाफ लाइफ निकालना है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, लास्ट टाइम भी स्टडीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ। So in that case, the concentration of the reactant will become exactly half. So that will be nothing but the half life, right? So जब भी in that particular case, अभी हमें पहले क्या करना है? First we'll write the integrated rate law for the zero order reaction. Okay. Now यहीं पे देखो, now please pay attention. What are the condition? Condition क्या क्या हो सकता है? What is T? T is equal to T. We have to calculate half life. So time क्या बनेगा? Exactly half T half. So जब भी आपका that time is equal to exactly half, right? So what is the concentration? So concentration क्या बनेगा? बता सकते हो? At time T. तो अगर इसमें what will be the value of AT? देखो हाफ लाइफ में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, राइट? इफ द कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बिकम एग्जैक्टली हाफ, राइट? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो आपका A नॉट रहेगा, हाफ लाइफ में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा? आधा हो जाएगा, बराबर। तो जब भी आपने T इज इक्वल टू T हाफ लिया है, तो दैट AT मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रहेगा रिएक्टर एट टाइम T, वो कितना होगा? वो भी एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली हाफ हो गया मतलब क्या हो गया कि उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उससे एग्जैक्टली आधा हो गया वो। तो व्हाट वाज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? मेरे पास A नॉट था, डिवाइड बाय 2 करोगे, आ गया ध्यान में? सो दैट इज व्हाट T हाफ, हाफ लाइफ इन शॉर्ट, राइट? नाउ ये मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसके अंदर, ठीक है? तो मेरे पास जो इक्वेशन था वो क्या था? दैट इज K। अभी ये T के जगह पे मैं T हाफ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे हाफ लाइफ निकालना है ना, T हाफ निकालना है। तो व्हेन आई एम टेकन T हाफ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा, बट ये AT जो है वो तो चेंज हो गया ना। AT क्या बन गया? A नॉट अपॉन 2, करेक्ट? अभी इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। K इज इक्वल टू T हाफ, यहाँ पे आपका इक्वेशन देखो डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो वो क्या बनेगा? 2 इंटू A नॉट माइनस A नॉट, ठीक है? बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आप सॉल्व करते जा रहे हो, डिवाइड बाय 2 या, ठीक है? तो ये बन जाएगा K इंटू T हाफ विच इज इक्वल टू 2 A नॉट माइनस A नॉट, कितना बन जाएगा? A नॉट हो गया ऊपर वाले में, राइट? डिवाइड बाय 2, राइट? तो T हाफ चाहिए मुझे, तो T हाफ इज इक्वल टू व्हाट? T हाफ इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज A नॉट डिवाइड बाय 2, और K यहाँ पे, ये जो K लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में आएगा 2K। सो व्हाट इज T हाफ फॉर? T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो, सो T हाफ इज इक्वल टू A नॉट अपॉन 2K, करेक्ट है? एकदम इजीली एक्सप्लेन कर दिया आपने। सो ये डेरिवेशंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए, बस आपको सिंपल इतना ही लिखते जाना है, राइट? सो व्हाट इज द एग्जैक्टली, सो half life of zero order reaction, T half is equal to A naught upon 2K. So the half life of zero order reaction is proportional to the initial concentration of the reactor. अगर आप देखोगे T half और ये है initial concentration, तो इसका मतलब क्या है? तो half life है zero order reaction का, it is actually proportional to the initial concentration of the reactant. क्योंकि अगर आपने इक्वल्स का साइन देखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और अगर आपको ये अगर रेट कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है तो वो क्या बनेगा? दिखता है। इजी? एनी डाउट? कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए अभी आप यहाँ पे। तो हमने 2 इक्वेशन यहाँ पे मेन, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन या फिर फॉर्मूलेज या फिर डेरिवेशन पढ़े हुए। फर्स्ट जो है आपका वो हाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ
for the zero order reaction which is equal to Kt is equal to A naught minus At और उसी का आपने हाफ लाइफ निकाल दिया है, राइट। सो आई विल रिपीट, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे है, एक्सप्रेस और डिराइव हाफ लाइफ ऑफ, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो इन दैट केस फर्स्ट यू विल राइट द integrated rate law for zero order reaction, then apply the condition at T is equal to T half। उस टाइम पे आपका जो concentration of the reactant रहेगा, initial concentration of reactant will be exactly half। तो at time T what will be the concentration left, या concentration क्या रहेगा, जब ये exactly half रहेगा तो initial concentration का आधा हो गया, मतलब A naught upon 2 हो गया। बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करके T half का वैल्यू निकाल, इजी, करेक्ट है ना। तो अभी देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, राइट ना। बिफोर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको इजीली, ये तो आपका डेरिवेशन हो गया, आइदर दे विल आस्क द डेरिवेशन और दे विल आस्क टू कैलकुलेट एनी न्यूमेरिकल। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, यहाँ पे देखो, यस ये देखिए, दिस इज द न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, विजिबल है ना सबको, यस वेरी गुड। नाउ प्लीज व्हाट इज द न्यूमेरिकल, चेक कर लो। द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is 0.04 ms इनवर्स मोल पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, और मोल पर सेकंड देगा। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन when the initial concentration of the reactant is 0.01 मोलार, राइट। सो पहले चेक करो क्या है, ये कौन सा है ऑर्डर, वेदर इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इन द गिवन क्वेश्चन इट इज मेंशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि वेदर इट इज द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अकॉर्डिंगली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज एंड वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर, करेक्ट। सो नाउ हियर द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, बराबर। तो मैं यहाँ पे गिवन जो है वो लिख देता हूँ। देखो गिवन के लिए मार्क्स नहीं होते, बट गिवन लिखने के बाद आपको आइडिया क्लियर हो जाती है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के भी आप अप्लाई कर सकते हो, मींस सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पहले तो ये ऑर्डर क्या दिया है, ऑर्डर क्या दिया है, जीरो, ठीक है, आप जीरो भी लिख सकते हो लाइक दैट। नाउ रेट कांस्टेंट क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है उन्होंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, k इज इक्वल टू हाउ मच, which is equal to 0.04। now concentration, अभी उनका कहना क्या है, देखो calculate the half life period of the reaction when the initial concentration of reactant is, initial concentration of the reactant is, consider अगर अपना reactant A है तो what is initial concentration, that is A naught, initial concentration A naught कितना दिया हुआ है 0.01 बोला, right। Now what we have to calculate, we have to calculate T half, तो T half जो है half life अपने कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखो सिंपल है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये स्टेटमेंट प्लीज लिखो आप, राइट। व्हाट इज T half, T half इज इक्वल टू A naught अपॉन 2K, सिंपल। तो आप बता दीजिए A naught कितना है आपके पास 0.01 है और 2 इंटू K का वैल्यू कितना था, 0.04 है ना, यस यस 0.04। सॉल्व करो आप, बताइए अभी आंसर इसका कितना आएगा, यस 125 पॉइंट, बताइए 0.24 या 25, यस बेटा
0.125। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये 0.04 है ना, बराबर ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो गया आपका 0.08, तो 1/8 हो जाएगा ना, 1/8 क्या हो जाएगा, 0.125 ना, ठीक है, इजी। So in this way we can calculate the numerical for the given. So इस तरह से बहुत और भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये तो एक सिंपल न्यूमेरिकल लिया हुआ है। So any doubt, इसमें कुछ डाउट है? Yes or no? So shall we move to the next part? Yes, sir. यहाँ पे ध्यान दीजिए। I will go with the next, that is the thing, but the one more important concept वो कंप्लीट कर लेता है, तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका शायद से चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। So we'll go with the next, that is nothing but the pseudo first order reaction, ठीक है। अगेन वीआईपी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? दिखने में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, बट वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है। इन सिंपल, देखो सिंपल वर्ड में, the reaction, if you see that particular reaction, so you will find that it is actually a first order reaction. वो दिखने में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखेगा, बट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड एज अ pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना है। देखो दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक का, व्हाट आर pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, give one example and explain why it is a pseudo first order reaction, या simply what is pseudo first order reaction, explain with one example। या आपको क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, you need to write the answer। तो इसका स्टेटमेंट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, ठीक है, certain reaction which are expected to be of higher order follow the first order kinetic, that is nothing but actually pseudo first order reaction, or a reaction which has higher order true rate law but experimentally found to behave as a first order। देखो आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, ऐसा कोई इतना ये नहीं, सेम टेक्स्ट बुक में जो दिया है वैसे भी लिख सकते हो। certain reaction which are expected to be of higher order but follows the first order kind, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ, राइट। certain reaction right, certain reaction which are expected to be higher order reaction, which are expected to be higher order reaction but follow the first order kinetic, follow first order kinetic। So this is nothing but the pseudo first order reaction, मतलब जो रिएक्शन है दिखने में आपको दिखेगी, right। So in that particular case, a reaction which has an higher order true rate law but experimentally found to behave as a first order, ऑर्डर उसका ज्यादा रहेगा बट वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करेगा, दैट इज व्हाट pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये हो गया आपका स्टेटमेंट, और इसका एक एग्जांपल है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या रहेगा, लेट इट बी CH3 COOCH3, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। चलो फटाफट से देख लीजिए, एक्वस H2O लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, तो आपको फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3 COOH, राइट, एक्वस, या एक्वस है, प्लस CH3OH।
नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, now here in this hydrolysis of methyl acetate, this is an ester methyl acetate, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, we are getting this CH3COH acetic acid plus CH2OH, that is methyl alcohol. तो रेट लॉ अगर आप देखोगे तो रेट लॉ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दैट इज K डैश, ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो आपका एक जो है मिथाइल एसीटेट है CH3COOCH3, राइट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O. बट एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O जो रहेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट. इसका स्टेटमेंट लिखना होगा आपको, मैं बताऊंगा. सो विच इज इक्वल टू हम लोग K डबल डैश कर लेते हैं. तो ओरिजिनल रेट लॉ क्या बन जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज K डैश इनटू आपका जो कॉन्सेंट्रेशन CH3COOCH3 है मिथाइल एसीटेट का इनटू K डबल डैश. तो ये एक्चुअल ओरिजिनल क्या बन जाएगा, K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3. ये एक एग्जांपल है. सो द रेट for this particular reaction it is depend only on the concentration of one of the reactant, so therefore it is nothing but your first order reaction. but originally अगर आप देखोगे तो रेट जो है वो आपको लगेगा कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कि that depends upon the concentration of both the reactant, right, methyl acetate as well as H2. ये होता कैसे है, ये होता actually the reaction was expected to follow the second order kinetic, this is आपसे, right, however it obeys the first order. दिखने में वो सेकंड ऑर्डर लग रहा है बट वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करेगा. ओके, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, द रीजन इज दैट एक्चुअली द सोलवेंट जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वाटर, ठीक है, व्हिच इज प्रेजेंट in a large excess, water is present in a excess quantity, large excess quantity में present होता है, that change the concentration means in that case the change in this concentration is actually negligible compared to the initial one, hence the concentration of water will remain constant. ये जो concentration होता है मतलब H2O जो होता है it is present in a large excess, right, तो जो concentration जो रहेगा वो negligible हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो concentration of H2O का हम लोग constant consider कर लेते हैं और ये आपको finally जो equation मिलेगा, so that is your first order reaction. Bye, sir. Okay.